Right, good evening everyone. So once again, welcome to this LRDI PYQ series and get ready for some really amazing caselets straight away from CAT 2020. Everyone, so this is what we are going to discuss, and I have picked some really interesting caselets, guys, and I'm sure you will like it. Okay, you will understand because this is the time that I expose you to the actual CAT questions. Okay, so you understand how much are you prepared, how much are you able to think, and in next 3-4 months how much do you need to accelerate, right? So once again, welcome to the session. My name is Ronak Shah, and this is our free special class, so I'm sure all of you are enjoying it. Yes, Loki and everyone else, I'm good evening. And let me share the PPT first quickly. So yeah, here it comes. Just a second, huh? Right. So we will start with a simple but nice puzzle, and then we will go ahead with the actual questions. Today it's 19th August, right? Yes, great. Hi guys. Good evening. Right. So let me share the PPT. Hi Harshit. Good evening. Just a second, huh? Yes. So now I'll be able to share it with you. Hello. Hi Vidanshi. Good evening. Hi Rahul, Shubhashish, Kavisha. Hi, good evening. So चलो सब लोग अभी settled हो जाओ. Make sure that you are not moving an inch for next 60 minutes. अच्छा, उसके अलावा मैं जल्दी से बता देता हूँ कि आप सब लोग मुझे 6 बजे भी ज्वाइन करोगे YouTube पे, जहां पे आज मैं ज्योमेट्री का क्वाड्रिलेटरल कराने वाला हूँ. कल मैंने ट्राइंगल, लाइन एंगल ट्राइंगल शुरू किया है लक्ष्य बैच में. सो हम पूरा ज्योमेट्री कंप्लीट करने वाले. अगर आपको नहीं पता था तो इस सेशन के बाद में जस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट स्पेंड करके वो पहला वीडियो देख लेना यूट्यूब पे अनअकैडमी कैट चैनल, और ताकि आप आज के सेशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सको. ठीक है. ऑल्सो प्लीज नोट डाउन माई कोड चार्ट एंड व्हेन यू गो फॉर प्लस और आइकनिक, सबसे पहले ये कोड अप्लाई कर देना है एंड फिर सब्सक्रिप्शन लेना है आपको. एंड दिस इज अ बिट अबाउट माई सेल्फ. दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप. आसानी से आप सर्च कर सकते हो अनअकैडमी_रोनक शाह. रोनक का स्पेलिंग एक बार देख लेना. दिस इज नॉट RAUNAK और RAUNAQ या ROU भी नहीं है, सिंपल है RONK. ठीक है. एंड दिस इज माय शेड्यूल वंस अगेन फॉर योर रेफरेंस गाइस. सो कीप लर्निंग. एंड हियर इज द फर्स्ट पजल. वी आर स्टार्टिंग विद अ डॉक्टर्स पजल. चलो कैसे करेंगे इसको टैकल. Quickly go through this puzzle. 16 patients in a hospital must undergo a blood test for a disease. And COVID समझ लो, COVID का टेस्ट है ऐसा कुछ समझ लो. Right. It is known that exactly one of them has the disease and the hospital has only 8 testing kits. जैसा आपको पता था कि कोविड के टाइम में टेस्टिंग किट्स कम थे. तो कैट वाले हमेशा एक चीज आप मान के चलो कि जो भी प्रिवेलिंग सिनारियो होते हैं ना, उसके ऊपर एक पजल लेके आ जाते हैं. ठीक है. जो भी प्रिवेलिंग सिनारियो होता है, अगर कभी पेपर लीक हो गया तो उसके ऊपर एक पजल बना दिया. कभी कोविड आ गया तो कोविड पे बनाएंगे. तालिबान पे कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको जिंदा रहना है. ठीक है. they don't want to invite the trouble for themselves, right? Okay. तो इसके ऊपर उन्होंने पजल बना दिया 2020 में. ये 2020 का ये पजल नहीं है, ये तो मैंने खुद से बनाया हुआ है. दिस वाज नॉट द 2020 पजल. इसके बाद आएगा, ऐसा ही है.
बट पहले हम ये मेरा वाला पजल सॉल्व करते हैं, फिर हम कैट वाला लेंगे। ओके, सो गाइज वेल्स मतलब बॉटल जिसके अंदर आप वो सैंपल कलेक्ट करते हो, ऐसे ऐसे एक ट्यूब टाइप आता है ना, थोड़ा सा ट्यूब टाइप भी कह सकते हो, बॉटल भी कह सकते हो। टिपिकली मेडिसिन वगैरह रखने के लिए आप उसको यूज करते हो, करेक्ट? सो या इट इज नोन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हैज अ डिसीज। तो उनके पास 16 कोविड पेशेंट्स आए हैं। कोविड नहीं कह सकते, कोई और डिसीज के ले लो, समझ लो, क्योंकि उसमें ब्लड सैंपल आपको कलेक्ट करने हैं। And the hospital has only 8 testing kits and has decided to put blood samples of patients into 8 bottles, or they are called vials, for the test. The patients are numbered 1 through 16, and the vials are labeled as A, B, C, D, E, F, G, and H. If a patient has a disease, then each vial, that is each bottle containing his or her blood sample, will test positive. If a vial tests positive, one of the patient whose blood sample were mixed in the vial has the disease. If a vial tests negative, then one of the patients whose blood sample were mixed in the vial has the disease. ठीक है? None of the patients, right? So how can you identify the patient with the disease, guys? इसमें आप कैसे patient with disease identify करोगे? बताओगे? आपके पास एक ही किट है, कम ऑन गाइस, कैसे करेंगे? ग्रुपिंग देम, ग्रुपिंग कैसे करेंगे जरा बताओगे? विच इज द इजीएस्ट वे टू ग्रुप देम? Yes, so Sandesh is saying something group of 4, then group of 2, and then 2, and then 1. Correct, करेक्ट गाइस। तो कुछ ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। पहले अगर मैं ऐसे करूं तो 1 to 16 पेशेंट्स है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, दो ग्रुप में डिवाइड करता हूं, 1 to 8 एंड 9 to 16। ठीक है, 1 to 8 को मैंने किट ए में रखा, ठीक है? किट ए में यूज किया, टेस्टिंग किट ए में लिया उनका सैंपल, सपोज, ठीक है दोस्तों, राइट? और फिर मैं क्या करूंगा, और फिर 9 to 16 का किट बी में ले लेता हूं, मिक्स कर देता हूं। तो या तो ये पॉजिटिव आएगा या तो ये पॉजिटिव आएगा, कोई एक पॉजिटिव आएगा, हमें नहीं पता है कौन सा आने वाला है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम फर्दर 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना? इसको हम फर्दर 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो इसके लिए हम सी यूज कर लेंगे, इसके लिए डी यूज कर लेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? है ना? ओके, फिर से आप ऐसे कर सकते हो इसके लिए, हाँ करेक्ट। और इसके लिए भी मैं वैसे ही कर सकता हूं ना दोस्तों, यहां पे सी डी यूज कर लिया तो ई एंड एफ यूज कर लो, इसको आप डिवाइड कर लो, यू कैन डिवाइड देम इन द ग्रुप, राइट? ये कौन से ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे दोस्तों? कितना हो जाएगा ये? 9 to 12 हो जाएगा एंड 13 to 16 हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसके लिए हम ई यूज कर लेते हैं, इसके लिए एफ यूज कर लेते हैं, ये चलेगा, राइट? हाँ, फिर हम क्या करेंगे, अभी इसको दो दो में डिवाइड कर दिया, है ना? इसको दो दो में डिवाइड कर दिया, तो ये आपका फर्दर जाएगा, बट इसके अंदर हमारे किट्स कम पड़ जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसमें हमारे किट्स कम पड़ जाएंगे। तो हम ऐसे करें तो दोस्तों, यहां पे हमने ए और बी में डिवाइड किया, क्या कुछ कंडीशन ऐसी मेंटेन करी हुई है क्या? द हॉस्पिटल हैज ओनली 8 टेस्टिंग किट एंड हैज डिसाइडेड टू पुल द ब्लड सैंपल। गाइस हम काफी ज्यादा लोगों का भी तो मिक्स कर सकते हैं ना? हाँ, तो मैं ऐसा करूं तो, एक सेकेंड, मैं यहां पे भी सी और डी ही यूज करूं तो, मैं यहां पे ही सी और डी यूज कर लू तो, लुक एट दिस पॉइंट। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। हाय आदर्श, हाय। हाँ देखो क्या होगा, या तो ए में डिसीज नहीं होगा या तो बी में नहीं होगा, तो हम सीधा एक पूरे ग्रुप को एलिमिनेट कर सकते हैं ना? तो हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनो फिर से एक बार। टोटल 16 पेशेंट्स थे, तो मैंने पहले 8-8 के ग्रुप में डिवाइड किए। ये 8 को बॉटल ए में उनका सैंपल रखा, इसका बॉटल बी में रखा। सर ओनली पॉजिटिव हैज टू टेस्ट फर्दर। नहीं विक्रांत, अज्यूम करो कि आपको सारे सैंपल्स एक साथ में भेजने हैं वो ट्यूब्स में। ऐसा नहीं है कि आपने पहले टेस्ट किया फिर वेट किया फिर टेस्ट किया, ऐसा नहीं है।
You need to collect 16 blood samples, you need to put them in the vials and you need to send it immediately, एक साथ में भेजना है। तो वहां पे ही तो चैलेंज आ रहा है। ओके, सो फिर से एक बार समझो दोस्तों, 8 लोगों का मैंने ए में रखा, ये 8 लोगों का बी में रखा। अब ये जो 8 लोगों का ए में रखा था, उसी में से 1 to 4 का मैंने क्या किया, सी में भी रखा एंड 5 to 8 का डी में रखा। ठीक है, जो पर्टिकुलर पेशेंट थे 1 to 4, सो 1 to 4 के ब्लड किस में गए, ए में गए, सी में गए। सिमिलरली 5 to 8 का ब्लड किस में गया, ए में गया और डी में भी गया है। करेक्ट। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, ये जो 9 to 16 पेशेंट से उनका बी में रखा और उसमें से 9 to 12 का सी में रखा एंड 13 to 16 का डी में रखा। सो बेसिकली सी में कौन से पेशेंट का ब्लड गया है, कैन आई से सी के अंदर 9 to 12 का भी ब्लड गया है एंड 1 to 4 का भी ब्लड गया है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव होगा तो आपको कैसे पता चलेगा। वेट अ मोमेंट, हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। यहां तक सबको क्लियर है मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? एक बार थम्स अप दिखा दो। ये बहुत ही सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों। फिर हम डिसाइड करेंगे कि पता कैसे करेंगे कौन सा पेशेंट पॉजिटिव है ना? राइट, ग्रेट। चलो तो गाइज अभी आगे क्या करेंगे, ये जो सी वाले थे उसको मैंने फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया, 1 2 एंड 3 4। अब इसको मैं रख रहा हूं ई में और इसको रख रहा हूं एफ में। सेम भी इसको मैंने डिवाइड कर दिया 5 6 7 8। यहां पे मैंने इनका रख दिया ई में, इसका रख दिया एफ में। इसको भी मैंने वैसे ही डिवाइड कर दिया 9 10 11 12 एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ये कंटिन्यू होगा, ये समझ में आ गया। और फिर फाइनली मैं क्या करूंगा, ये जो है इसमें से 1 को मैं रखूंगा जी में और 2 को मैं रखूंगा एच में। सिमिलरली 3 को रखूंगा जी में एंड 4 को रखूंगा एच में एंड सो एंड सो फोर्थ। क्या ये बाइफर्केशन समझ में आया आपको? हैव यू अंडरस्टूड दिस बाइफर्केशन? राइट, ओके। नाउ गाइस लेट मी टेल यू, सपोज आपका ऐसा आया, ऑफ कोर्स या तो ए या तो बी में से कोई एक पॉजिटिव आएगा, दोनों एक साथ में पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आ सकते। कहने से ए और बी में से कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव आएगा। सिमिलरली सी और डी में से कोई एक तो पॉजिटिव होगा, कोई एक नेगेटिव होगा ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारे पेशेंट्स का ब्लड सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहा है। तो या तो सी वाला ट्यूब जो है बॉटल है वो पॉजिटिव आएगा या डी वाला पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली ई और एफ में हमने सारे पेशेंट का डिवाइड कर दिया तो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा एंड जी और एच में से कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव आएगा। करेक्ट। सपोज दोस्तों ऐसा मान लो कि आपका ये वाला पॉजिटिव आ रहा है, सपोज आपके ये वाले पॉजिटिव आए ए बी ई एच, ये पॉजिटिव आया। बताओ कि ये कौन सा पेशेंट डिसीज वाला है? अगर ऐसे मैंने रखा तो इफ आई से ए डी एफ एच आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ट्यूब्स रिमेनिंग वायल्स आर नेगेटिव, ये 4 पॉजिटिव है और बाकी के नेगेटिव है, तो आप बता सकते हो इसके बेसिस पे विच पेशेंट हैज द डिसीज? एवरीवन जिसने अभी जस्ट ज्वाइन किया है गाइस, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, मैं वापस आपको पूरा बताऊंगा। कैन वी से पेशेंट नंबर 8 एवरीवन? क्यों ए पॉजिटिव है मतलब 1 to 8 हो गया, ए पॉजिटिव है मतलब 1 to 8 हो गया। देन डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है मतलब 5 to 8 हो गया। ठीक है, देन एफ पॉजिटिव है तो 5 to 8 में एफ कहां गया था, 7 and 8 में, तो 7 8 में से कोई पॉजिटिव है। एंड एच पॉजिटिव है तो इसमें से हम जी में 7 रखने वाले थे और एच में 8 रखने वाले थे। तो कहना से फाइनली मुझे पता चल गया एच इज पॉजिटिव। You know, you can actually figure it out in a smart way. This is that smart way to figure out which patient has disease. क्या ये सबको समझ में आया दोस्तों? Yes. Now this was a CAT 2020 caselet. ये था CAT 2020 का caselet. ठीक है, ये था CAT 2020 का caselet. मैं एक बार फिर से बता देता हूं जिसने अभी जस्ट ज्वाइन किया दोस्तों, कैसे हमने किया। There are 16 patients 1 to 16, there are only 8 kids, kids के नाम है A B C D up to H। ठीक है, आपने क्या किया, पेशेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया 1 to 8 9 to 16। इसको इसका सैंपल ट्यूब ए में रखा या बॉटल ए में रखा, इनके ब्लड सैंपल ट्यूब बी में मिक्स किए। जैसा कि यहाँ पे डायरेक्शन में पूरा बताया हुआ है, आपको ये पार्ट पढ़ना पड़ेगा। इफ अ पेशेंट हैज द डिसीज देन ईच वाइटल कंटेनिंग हिज और हर ब्लड सैंपल विल टेस्ट पॉजिटिव। मतलब अगर मैंने एक ट्यूब में 4 पेशेंट के ब्लड सैंपल मिक्स किए, अगर उनमें से कोई भी एक पॉजिटिव है तो उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, वो पर्टिकुलर वायल जो है उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा। इफ अ वायल टेस्ट पॉजिटिव, वन ऑफ द पेशेंट हुज ब्लड सैंपल्स वर मिक्स्ड इन दैट
vial means bottle, यहाँ पे मैंने वो भी बताया था, has the disease. If a vial is negative, then none of the patients whose blood samples were mixed in that vial have the disease. Very simple. तो उसके बेसिस पे हम ऐसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं and we can figure out कि कौन सा ये है. अब मैं आपको कैट का एक्चुअल केस लिस्ट दिखाता हूं दोस्तों, गेट रेडी. ठीक है, कैट का एक्चुअल सेट दिखाता हूं, बट उससे पहले जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि प्लस के अंदर you enjoy this benefits, and most important thing guys, you get my guidance, you can ask your doubts, right? Test series, DDPI prep, ये सारा इसमें आता है. So CAT preparation is not only about watching videos, it's about getting mentored. So come and join my plus batch. उसके लिए आपको मेरा कोड SHAH10 यूज करना पड़ेगा. So please use it and join plus, and then you can talk to me at Ronak_live. आप मुझे अगर प्लस के लिए कुछ भी बात करनी है लेने से पहले भी, तो आप मुझे यहाँ पे टेलीग्राम पे पिन कर सकते हो. And in Iconic, you get this additional benefits. So please note down that. These are the pricing plan for your quick reference in case if you have just come across. So ये pricing plan है. Apply this code and you will get 10% discount also. And these are the Iconic pricing. Of course, it has its own value. Right. Hi, Dheeraj. And these are the offers which are going on. So quickly grab it, especially if you are preparing for 2022 or 2023. दूसरा, मैं YouTube पे 2022 एंड 2023 के लिए एक कोर्स शुरू कर रहा हूं. ठीक है, 22-23 वालों के लिए क्वांट का एक कोर्स शुरू कर रहा हूं. इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स. ठीक है, सो आर यू ऑल एक्साइटेड? हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू जॉइन मी गाइस ऑन YouTube फॉर दिस कोर्स? वेरी सून इट इज स्टार्टिंग. ठीक है, यस, एक्सीलेंट. आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी देयर. ओके, और उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मेरे ग्रुप में आ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में. मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर पार्ट ऑफ माय टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू डू नॉट मिस दिस थिंग. ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं आपके साथ में ग्रुप लिंक शेयर भी कर देता हूं यहां पे, ताकि सब लोग ज्वाइन कर सके. एंड नाउ हियर कम्स द कैट क्वेश्चन. So guys, this is CAT 2020 slot 3 question. Please quickly check. This was slot 3 question. ठीक है, जल्दी से डेटा पढ़ लो. And then let me create a poll. Nice, easy question to tackle. मैं फिर भी आपको 120 seconds का टाइम दे देता हूं. आज हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लेट करने वाले हैं दोस्तों. मतलब ऐसे केस लेट जो आपको देख के तो डरावने लगेंगे, लेकिन समझ लोगे तो एकदम इजी लगेंगे. सो दैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. एंड ऑल्सो एवरीवन, क्या स्नैप के एक्चुअल डेट्स और पेपर पैटर्न वगैरह सब मैंने रिलीज किया है. सो प्लीज वॉच माय वीडियो ऑन यूट्यूब, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा. Why only few students are able to answer this? I'm surprised. चलो कोई इश्यू नहीं है, मैं समझाऊंगा ये केस लेट. Yes, absolutely. Puzzle made it easy. Right. So guys, that's the reason. So मैंने काफी सारे केसलेट्स आपको कराए हैं जो मैं प्लस में भी कराता हूँ. You know, I don't directly throw a question to you. I try to put some extra steps. So that helps you in thinking. Everyone, whether you are strong or weak, with the help of those additional small questions, easy question, your mind starts thinking that direction. So that is what I always try to do. I'm sure those who are attending my plus batches or even in these sessions have done that.
ठीक है, चलो। So guys, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 16 patients in a hospital must undergo a blood test for a disease. It is known that exactly one of them has the disease and the hospital has only 8 testing kits. By the way, this is called binary logic. इसको binary logic भी कहते हैं. It is based on that. The hospital has 8 testing kits and has decided to put blood sample of patients into 8 vitals for the test. The patients are number 1 through 16 and these are the kits. अब उन्होंने क्या किया, पेशेंट 1 का ब्लड उन्होंने ये 4 किट में रखा, पेशेंट 2 का ब्लड उन्होंने ये 4 किट में रखा है, पेशेंट 3 का ये 4 किट में, and so on and so forth. So we have all the necessary data to solve the question. Now what are they saying? Suppose while C test positive and while AEH test negative. Guys, can I say while AEH test negative मतलब 9 to 16 सब में A आ रहा है, तो ये पेशेंट्स तो नहीं होंगे. Do you agree with this? क्योंकि उनका रिपोर्ट तो नेगेटिव आया है. While A का नेगेटिव आया मतलब पेशेंट 9 to 16 कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है. तो बचे कौन से, ये. फर्दर दे आर सेइंग E and H are also नेगेटिव. तो जो भी E वाले हैं वो सबको उड़ा दो, तो ये दो चले गए और ये दोनों भी चले गए. तो बचे कौन से, 1 2 5 6. और H भी नेगेटिव है तो H वाले भी उड़ा दो, H वाले भी उड़ा दो. अच्छा, हमें ये बताया हुआ है कि C इज पॉजिटिव, तो बचा कौन सा, इसमें C सिर्फ इसमें ही आ रहा है, इसमें तो C आ ही नहीं रहा है. तो इट हैज टू बी पेशेंट नंबर 6, है ना. C का पॉजिटिव है तो C का ब्लड सैंपल हमने कौन से पेशेंट का C में रखा था, पेशेंट नंबर 6 का. तो बचा वही हमारा आंसर. वाज़न्ट दैट एन इजी क्वेश्चन गाइस? क्या ये एक इजी क्वेश्चन नहीं था? बोलो. ये बस जस्ट आपके माइंड को ओपनली सोचना पड़ेगा दोस्तों, ओपनली सोचना पड़ेगा. ठीक है, हाँ डेफिनेटली. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी. क्रिस्ले पहले से ही तैयार है. क्रिस्ले को पता है कि अभी कुछ आएगा. डेफिनेटली गाइस, थोड़ा कुछ तो आता ही रहेगा. ठीक है, बट नहीं, नेक्स्ट वाला भी इजी है गाइस, तो मैं थोड़ा सा कम समय दूंगा इसके लिए. मुझे नहीं लग रहा है इतना ज्यादा डिफिकल्ट है. इतने ज्यादा स्टूडेंट्स का नेगेटिव क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है? सरप्राइजिंग गाइस. ओके चलो समझते हैं इसको भी इजी बना देते हैं दोस्तों. सपोज वाइल ए टेस्ट पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है मतलब ये पूरा चला गया, एंड वाइल डी एंड जी टेस्ट नेगेटिव. अब इसमें डी और जी दोनों नेगेटिव है तो मतलब ये पेशेंट्स चले गए और जी वाला मतलब ये दो पेशेंट भी चले गए. तो बच्चे कौन से हैं नाउ? वी जस्ट नीड टू चेक पेशेंट नंबर 13 and 15, राइट. Then which of the following vials should we test next to identify the patient with the disease? तो गाइज अभी ये दोनों में डिफरेंस कहां पे, कहने से F और E में ही डिफरेंस है. तो मैं या तो F टेस्ट करूंगा या E टेस्ट करूंगा. F दिया ही नहीं है तो विल हैव टू टिक मार्क E, खत्म. ठीक है ना. आप अगर E टेस्ट करोगे तो अगर वो नेगेटिव आया तो डेफिनेटली F पॉजिटिव हो गया, या E पॉजिटिव आ गया तो F पॉजिटिव हो नहीं सकता. आपको अल्टीमेटली पेशेंट पता चल जाएगा बाय चेकिंग दिस. अभी क्लियर गाइस, राइट. मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जिसको भी नहीं समझ में आया था उनको ये डायग्राम एक बार देख लेना चाहिए.
अगर ये डायग्राम आपने देख लिया डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा सिनारियो, ठीक है। या लेट्स लुक एट अनदर वन, unless you are finding it too horrible, the diagram. Fine guys, so let's take up this question. What will be the answer for this? Give a thought and do it guys. Try to focus on accuracy. Accuracy पे focus करो. Which of the following combinations of test result is not possible? इस क्वेश्चन का आंसर आप 10 सेकंड में दे सकते थे, 10 सेकंड्स। गाइस जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ए और बी में से कोई एक पॉजिटिव आएगा, कोई एक नेगेटिव आएगा, सी और डी में से कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव, ई एफ में से कोई एक पॉजिटिव कोई नेगेटिव, एंड जी एन एच में गाइस सी और डी दोनों नेगेटिव हो ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्यों? देखो यहां पे उन्होंने क्लासिफिकेशन कैसे किया है, उन्होंने क्या किया कि 1 to 8 को उन्होंने बी दिया एंड 9 to 16 को उन्होंने ए दिया है, तो कहने से ए और बी में से कोई एक ही पॉजिटिव होगा। फिर जिसको बी दिया था उसमें से आधे को उन्होंने डी दिया और आधे को सी दिया। सिमिलरली ए में आधे को डी आधे को सी, तो कहने से सी और डी में से कोई एक ही पॉजिटिव आएगा, कोई एक नेगेटिव आएगा ही आएगा। डू यू एग्री विद दिस? सिमिलरली एफ और ई के लिए है और जी और एच के लिए है। बिल्कुल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन समझाया था, इट इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस। तो ये तो बहुत सिंपल नहीं था दोस्तों, क्या अभी सबको समझ में आया? ओनली 38% और समथिंग लाइक दैट स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट करेक्टली। आई एम सरप्राइज्ड व्हाई इज इट सो लेस, इट शुड हैव बीन मोर देन 80% नाउ। ठीक है ना गाइस, थोड़ा सा सोच के करो अभी। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, इसके लिए आपको पूरा फ्रेश सोचना पड़ेगा। सोचो, रीड द क्वेश्चन, गिव अ थॉट, फिर मैं पोल शुरू करूंगा एंड आई विल गिव यू टाइम इन द पोल आल्सो। Yeah, let me create the poll. ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा और सेट में कन्वर्ट कर दिया, सेट थ्योरी वेन डायग्राम लेके आ गए यहाँ पे। नो कैट पीपल नो हाउ टू मेक things look difficult which can be easy, which is actually easy. That is what they try to do all the time. If you can just learn that trick, you are through, and that will come through lots of practice. Whether you are doing it in my session or you are doing it on your own, that's fine, but you need to do practice.
ये क्वेश्चन मैं आपको 20 सेकेंड्स में समझा दूंगा दोस्तों, ठीक है? चलो लेट्स अंडरस्टैंड। अच्छा, हाँ, सपोज कोई एक पेशेंट है P1, आई एम नॉट राइटिंग इट्स नंबर, सपोज उसका सैंपल था AC ENG में, सपोज उसका सैंपल था ACEG, ठीक है? और दूसरा पेशेंट है P2, ओके, उसका सैंपल था ये दोनों में, सपोज B, D, F एंड H में था उसका सैंपल, ठीक है? हमें क्या कहा है, सपोज वन ऑफ द लैब असिस्टेंट एक्सीडेंटली मिक्स्ड टू पेशेंट्स ब्लड सैंपल्स, टू पेशेंट्स ब्लड सैंपल। गाइस, एक पेशेंट का ब्लड सैंपल कितने में गया हुआ है, कितने टेस्ट ट्यूब में गया हुआ है? 4 में गया हुआ है, ठीक है? तो मतलब उसने 2 पेशेंट के ब्लड सैंपल मिक्स कर दिए, ठीक है? 2 पेशेंट के ब्लड सैंपल मिक्स कर दिए, मतलब कैन आई से उसने 4 + 4 वायल को मिक्स कर दिया होगा, राइट? उसने 4 + 4 वायल को मिक्स कर दिया होगा। डू यू एग्री विद दिस? है ना? मतलब ऐसे समझ सकते हो, राइट, कि उसने ए को बी के साथ में मिक्स किया। हाउ आर यू गोइंग टू इंटरप्रेट दिस? यू नो, पेशेंट ए का ए में था, पेशेंट 2 का बी में था, इसका सी में था, इसका डी में था, एंड सो फोर्थ। तो ये मिक्स कर दिया, तो कैन आई से नाउ ऑल विल बी इन्फेक्टेड, ऑल द वायल्स विल बी इन्फेक्टेड, क्योंकि या तो ये इन्फेक्टेड होगा या तो ये इन्फेक्टेड, कैन आई से या तो ये 4 टेस्ट ट्यूब इन्फेक्टेड हो गए या तो ये 4 टेस्ट ट्यूब इन्फेक्टेड हो गए, है ना? मतलब जरूरी नहीं है कृष्ले, जरूरी नहीं है कि सारे मिक्स वो हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, एक दूसरा सिनारियो भी बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है? तो ये दोनों को मिक्स कर दिया, तो कहने से 8 इन्फेक्टेड हो गए, तो 8 का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू विल डेफिनेटली बी 8, तो ये तो हट गया, ये ऑप्शन हट गया, ये हट गया। नाउ आई एम लेफ्ट विद दिस 2। अब इसमें 4 है, इसमें 5 है, ठीक है? मतलब इसमें 4 पॉजिटिव हो सकता है, इसमें कह रहा है कि मिनिमम 5 का तो पॉजिटिव आएगा। दोस्तों, व्हाट इफ आई मिक्स 2 सैंपल्स, बोथ ऑफ देम वर नेगेटिव? अगर मैंने 2 ऐसे सैंपल मिक्स किए जो दोनों नेगेटिव थे, ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है ना। सपोज मैं इनको मिक्स करता हूं, ध्यान से देखो किस किस को करता हूं। लेट मी शो यू। सपोज इसको मिक्स किया मैंने, ये नेगेटिव है ऐसा समझ लो, ओके, ADFH ये नेगेटिव है, और उसको अगर मैंने कोई पॉजिटिव के साथ में मिक्स किया, मतलब इसको मैंने किसी और में मिक्स कर दिया, तो कैन आई से अल्टीमेटली 4 तो मिनिमम, 4 तो पॉजिटिव आने वाले हैं, देयर विल बी मिनिमम 4 पॉजिटिव। डू यू एग्री विद दिस? there will always be minimum 4 samples, 4 bottles which will be positive, 4 vials which will be positive। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? yes, तो दिस इज व्हाट वी हैड टू अंडरस्टैंड, कि अल्टीमेटली आप कोई भी 2 ऐसे नेगेटिव नेगेटिव को मिला दो कि उसमें कोई फर्क ही ना पड़े, राइट? तो उस केस में आपका 4 ही पॉजिटिव सैंपल रहेंगे। जैसे मैं इसको अगर आपको समझाना चाहूं ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सपोज A was positive, B was negative, B was sorry, A was positive, C was positive, E was positive and say G was positive, और बाकी के B, D, F and H were negative। अब कोई एक पेशेंट है जिसका सैंपल है सपोज AC, कौन से ऐसे 2 सैंपल को मिक्स करूंगा कि पॉजिटिव मेरे यही रहेंगे, कोई नया पॉजिटिव नहीं आएगा? कैसे ऐसे मिक्स करें, बताओगे जरा? कैसे हम सैंपल्स को मिक्स करें कि वो 4 ही पॉजिटिव रहेंगे? नहीं, उसने पेशेंट के सैंपल मिक्स किए हैं, पेशेंट के सैंपल मिक्स किए हैं। तो कोई भी पेशेंट का सैंपल ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सी कोई भी पेशेंट लोगे उसका ए और बी में से एक होगा, सी और डी में से एक होगा, ई और एफ में, और जी और एच में से एक होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
डू यू एग्री विद दिस दोस्तों? तो देर विल बी अ कॉम्बिनेशन. हाँ सर, ड्यू टू रेन नेटवर्क इज नॉट स्टेबल. इट्स ओके देविता, आई कैन अंडरस्टैंड. सो जस्ट थिंक फॉर दैट पॉसिबिलिटी जहां पे एग्जैक्टली 4 ही पॉजिटिव रहेंगे, आपके यही पॉजिटिव रहेंगे. बी डी एफ एच नॉन इन्फेक्टेड ही रहेगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज देयर विल ऑलवेज बी मिनिमम 4 वायल्स जो आपके पॉजिटिव रहेंगे. 5 होना जरूरी नहीं है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं. तो इसको अभी समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है मेरे लिए, बट आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड. यू कैन जस्ट गिव अ थॉट कि कौन से वो हो सकते हैं, राइट? सो गाइस आंसर विल बी ऑप्शन ए कि 4 पॉजिटिव हो सकते हैं. ठीक है, ओके, चलो फाइन. सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट डॉक्टर्स पजल एज वेल एज दैट कंप्लीट कैट केसलेट. ठीक है, right, now let's take one more similar one, but before that guys, please join me today at 6 p.m. do not forget, huh? And yeah, let's look at this one now. जल्दी से इसको देखते हैं. Now this is again a good cat, a caselet guys. इसको मैं थोड़ा सा टफ साइड पे कहूंगा. ओके कृष्ले, हाँ हाँ, लेट्स सी. मैंने एक दो साइड पे इसका गलत सोल्यूशन देखा था दोस्तों. सो आई डोंट नो, मतलब क्योंकि कैट वाले तो आंसर रिलीज नहीं करते, तो फिर कुछ लोग मिस इंटरप्रेट भी करते हैं इसको. Just go through the data, then I'll start the poll. Just a second. Yes. क्या सब लोगों ने ये पढ़ लिया? Have you all read this, everyone? Yeah, shall I start? इसमें theta question है, so please enter your answer. The total number of possible configuration using the beads only of 2 colors. Guys, अब यहाँ पे देखो, आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया ना. There are only 3 color beads. Then there are additional condition, 2 adjacent beads among the same row or column are always of different color, and there is at least one green and one there is at least one green bead between any 2 blue beads. Then there is at least one blue and at least one green bead between any 2 red bead. मतलब can I say अगर मैं red bead यूज करूंगा तो उसके साथ में, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं सिर्फ एक red bead यूज करूं ऐसे, तो ऐसे तो हो नहीं सकता. यू विल हैव टू पुट सम अदर बीट्स, राइट? तो कैन आई से अल्टीमेटली अगर जैसे यहां पे आपने रखा या यहां पे आप रखोगे तो अल्टीमेटली देयर विल बी अदर रेड बीड और बीच में ग्रीन एंड ब्लू आएगा ही आएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इफ यू आर आस्क्ड टू यूज only two color beads, it has to be green and blue only. क्या ये समझ में आया? If we need to use only 2 color beads, तो it has to be green and blue. You can't use red. रेड यूज करोगे तो उसके साथ में ग्रीन एंड ब्लू भी आ ही जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ग्रीन बीड एंड ब्लू बीड. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज देयर इज एटलीस्ट वन ब्लू, नहीं, देयर इज एटलीस्ट वन ग्रीन बीड बिटवीन एनी 2 ब्लू बीड्स. ओके, तो गाइज यहां पे क्या होगा? सपोज मैंने ब्लू रखा, फिर मुझे ग्रीन रखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं ब्लू तो रख ही नहीं सकता. फिर वापस मुझे ब्लू रखना पड़ेगा, तो वापस मुझे ग्रीन रखना पड़ेगा एंड वापस ब्लू रखना ही पड़ेगा. अब यहाँ पे वर्टिकली भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ ग्रीन, तो यही पैटर्न कंटिन्यू होगा.
कैन आई से ये पैटर्न ऐसे कंटिन्यू होगा. सो दिस इज वन कॉन्फ़िगरेशन एंड देन यू स्टार्ट ओवर हियर विद ग्रीन कलर. सो देन दिस विल बिकम ब्लू कलर. सो ये दूसरा एक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा. सो देयर आर जस्ट टू कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल, एज सिंपल एज दिस. अगर आपने ये समझ लिया, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट आर द कंडीशन, वेरी सिंपल कंडीशंस. So you must realize that if you are to use only two color beads, there cannot be red color bead in that. Are we clear? दोस्तों, there cannot be red color bead in that. So बस उससे आपने eliminate कर दिया. Correct? Yeah. Just a second. ठीक है? ओके, तो इसका आंसर तो आपका 2 आ गया, राइट? नाउ लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन. प्लीज ट्राई फॉर दिस. काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं. चलो गाइस, इसको करते हैं. मुझे क्या करना है यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम, एवरीवन, या सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड how to solve this question. What is the maximum possible number of red beads that can appear in any configuration? Guys, what I know is between any two, I can't keep two red together. So there has to be at least one green, at least one blue over here. Then I can keep red, then again green, again blue, something like this I can keep. You agree with this? Guys, ये सबको क्लियर है? तो यहां पे ऑफ कोर्स मैं क्या करूंगा, ये पूरा पूरा लिखने की जगह पे कहना से आई कैन पुट रेड ओवर हियर, देन यहां रेड नहीं रख सकता, फिर यहां रेड रख सकते हैं. सेम वे वर्टिकली यहां पे रेड नहीं रख सकते, यहां पे रेड रखोगे तो यहां दोनों पे नहीं आएगा, यहां पे आएगा. डू यू एग्री विद दिस? अब ये जो डैश किए हुए वहां पे रेड नहीं आ सकता. क्या ये सबको क्लियर है? ये क्लियर है आपको? डायगोनली कोई कंडीशन नहीं है. देखो, each cell in the grid must contain exactly one bead. Two adjacent bead along the same row और column कहा है, they should be of different color. ठीक है? हाँ, yes. हाँ, अभी डायगनली भी बनेगा. अच्छा, आप ऐसे कह रहे हो डायगनली भी बनेगा, तो अगर मैंने यहां पे रेड रखा तो मैं यहां पे रेड रख सकता हूं. ठीक है? फिर मैं कहां पे रख सकता हूं रेड? सिमिलरली अगर मैं यहां पे रेड रखूं तो मैं यहां पे रख सकता हूं, क्योंकि ये दो तो नहीं आएंगे. ठीक है? तो ये मेरे कितने हो गए टोटल? 8 तो हो गए. अच्छा, 8 तो हो गए ना, और यहां पे भी तो रख सकते हैं ना रेड. बट क्या ये सही है? जरूरी नहीं है दोस्तों. इज इट नेसेसरली बी ट्रू? बट सर देयर मस्ट बी अ ग्रीन बिटवीन टू ब्लूज. हाँ, अगर हम टू ब्लू रखेंगे तो ग्रीन रखना ही पड़ेगा. तो गाइज अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ग्रीन रख देता हूं, यहां पे ब्लू रख देता हूं, और यहां पे वापस ग्रीन रख देता हूं. क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं. सिमिलरली मैं यहां पे ग्रीन रख देता हूं, और यहां पे ग्रीन और यहां पे ब्लू रख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? ये समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली अब मुझे यहां पे डेफिनेटली ब्लू रखना पड़ेगा, तो यहां पे आपका ग्रीन ही आएगा, या फिर यहां पे ब्लू आ जाएगा. सो देयर इज एटलीस्ट वन ग्रीन बिटवीन टू ब्लू, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. ठीक है? और फिर यहां पे कौन सा आ जाएगा? ग्रीन आ जाएगा. तो अब आपके पास यहां पे ऑटोमेटिकली सब अरेंज हो रहा है. देखो, एवरीथिंग इज गेटिंग सॉर्टेड ऑटोमेटिकली. ठीक है ना? सो मतलब ये पॉसिबल होगा आपका, ये पूरा पॉसिबल होगा. करेक्ट? सर ब्लू के नीचे ब्लू कहां पे आया? सर ब्लू के नीचे ब्लू आ गया, कहां पे आया भाई? ब्लू के नीचे ब्लू कहां पे आया? ओ, यहां पे आया है ना. हम्म
अच्छा, ये मैंने ब्लू कलर यूज नहीं किया था इसलिए ऐसा हुआ। ओके ठीक है, उसके लिए हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, लेट शफल इट दिस वे। तो इसको मैं कर देता हूं कुछ ऐसे। ओ शिट गाइस, आपने समझा, मैं ऊपर दोनों के शफल कर देता। अल्टीमेटली यू कैन पुट इट इन 9 वेज। ठीक है, मैं यहां पे जस्ट रख देता हूं अभी के लिए, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए रख देता हूं, तो आप कर सकते हो। बट उसमें सेटिस्फाई करेगा दोस्तों, इट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई। ठीक है, ग्रीन यहां पे नहीं रखेंगे हम, ग्रीन को है ना यहां से शुरू करते हैं। सपोज मैं ग्रीन यहां रखता हूं, फिर ग्रीन यहां रखता हूं, फिर ग्रीन यहां पे और यहां पे, फिर ग्रीन यहां पे और यहां पे, फिर ग्रीन यहां पे। ठीक है, फिर ग्रीन यहां पे और यहां पे। अब देखो, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? इज देयर एनी इश्यू विद दिस? जस्ट चेक वंस। कैन आई से बिटवीन एनी टू ब्लू यू आर गेटिंग वन ग्रीन, राइट? जैसे बिटवीन एनी टू ब्लू यू आर गेटिंग वन ग्रीन। कंडीशन सारे सेटिस्फाई हो गए। अभी क्लियर दोस्तों? सो मैक्सिमम कितने हुए आपके? इट कैन बी 8, राइट? चलो गाइस, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लू बीड्स इन एनी कॉन्फ़िगरेशन? क्या आंसर आएगा इसका? क्या इससे हम आंसर दे सकते हैं? क्या इससे आंसर दे सकते हैं? नहीं। और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड बीड्स कहा था ना? सॉरी, हाँ 9 आएगा। आई एम सॉरी, या इट हैज टू बी 9। What is the minimum number of blue bits? Guys, minimum number of blue bits. क्या इससे आंसर दे सकते हैं हम? नहीं। क्यों नहीं दे सकते? RGBR से मिनिमम आएगा। ओके, लेट्स चेक गाइस। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ब्लू या ग्रीन को मिनिमाइज करना है या ब्लू को मिनिमाइज करना है, ठीक है, तो कैन आई से आपको रेड एंड ग्रीन मैक्सिमाइज करने पड़ेंगे। तो in the previous arrangement we had tried to maximize the red color beads, and that is why they have asked this question just to make your life easier. They have asked this question to make your life easier. तो एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि रेड तो आपको यहां पे ऐसे ही सेट करना पड़ेगा। ठीक है, रेड तो आपको यहां पे ऐसे सेट करना ही पड़ेगा। दिस आर द मैक्सिमम रेड। अभी क्लियर? लेट्स सी, लेट्स सी। अब गाइज, हमें ग्रीन को अरेंज करना है। ठीक है, हमें ग्रीन भी मैक्सिमाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, जितने हो सके उतने ज्यादा ग्रीन यूज करूंगा। ठीक है, जितने हो सके उतने ज्यादा ग्रीन यूज करूंगा। तो यहां पे मैंने ग्रीन यूज कर लिया, यहां पे ग्रीन यूज कर लिया, तो कहने से यहां पे ब्लू आ जाएगा। ओके, अब यहां पे आपको दिक्कत आने वाली है। कंपलसरी आपको यहां पे ब्लू रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहां पे ग्रीन, यहां पे ग्रीन और यहां पे ब्लू रखना ही पड़ेगा। यू एग्री विद दिस? तो गाइस, हर एक रो में एक एक ब्लू आएगा, सिर्फ ये एक रो में एक एक्स्ट्रा ब्लू आ जाएगा। सो टोटल आपको इसमें 6 रखना पड़ेगा। देखो, क्या ये समझ में आ रहा है सबको दोस्तों? यस, 6 विल बी द आंसर। ठीक है, क्योंकि इससे कम नहीं कर सकते आप। एक रो तो ऐसा आएगा जहां पे एक ही रेड है। देखो, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि जहां पे 2 रेड है वहां पे साथ में 2 ग्रीन रख के एक ब्लू रख दो, पर जहां पे एक ही रेड है वहां पे 2 ब्लू और 2 ग्रीन आएंगे ही आएंगे। 3 ग्रीन तो आ ही नहीं सकते। समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक है ये।
तो आपको इतना सारा अरेंजमेंट बनाने की जरूरत भी नहीं थी। सो दैट्स इट गाइस। एक और क्वेश्चन है इसका, वो आप आज होमवर्क में कर लो। Amrit is saying, sir, I was watching your playlist and saw class live and came to say that your teaching skills are good. Thank you so much. Oh, thanks, Amrit. Yeah, I take pride in that thing that guys you will find most of my things very organized. हालांकि मेरा टेबल इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, but my content, my slides, my sessions in that particular the Excel sheet I have shared is very systematic. क्योंकि वो मेरा असिस्टेंट टैकल करता है, मैं नहीं करता। ठीक है, तो मुझे अच्छा असिस्टेंट मिला है, ऐसा समझ लो। तो गाइस, अदरवाइज आई एम अ मेसी पर्सन यार। ठीक है, मतलब मैं लिखता हूं तो भी मेरे लेटर सीधे नहीं जाते हैं। एनीवेज, जोक्स अपार्ट गाइस, बट या आई ट्राई टू मेक अ पॉइंट दैट यू गेट everything in proper order. Okay. Guys, go for the skill builder test and also explore this Unacademy, the Iconic subscription using code SHAR10. Code ये याद रखना. And thanks everyone for your good comments and all. Plus batches are starting guys, so you can use this code and you can join me. 6 बजे आपको पता है क्या है, आज ज्योमेट्री करने वाले। अच्छा, ये यूआरएल की मैं बात कर रहा था। काफी लोग इसको मोबाइल पे ओपन करते हैं। प्लीज डोंट ओपन एनी ऑफ दिस यूआरएल इन मोबाइल। दिस आर गूगल शीट्स बेसिकली। गूगल शीट से ये इसको लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन करो, बड़ी स्क्रीन पे देखो, टैब्स दिखेंगे नीचे बहुत ही क्लियरली। लक्ष्य बैच 1.0 फॉर क्वांट, फिर दूसरा दिखेगा लक्ष्य बैच 1.0 फॉर एलआरडीआई, फिर ऑल क्वांट करके एक अलग होगा प्लेलिस्ट, फिर सीमैट सीईटी करके एक प्लेलिस्ट होगा। बहुत सारे प्लेलिस्ट दिखेंगे आपको। आप जब ऐसे देखोगे ना तो लाइन में दिखेगा आपको टॉपिक वाइज। अगर आपको एल्जेब्रा करना है, लाइन में 12 सेशन एल्जेब्रा के दिखेंगे आपको। अगर खुद से कर लेते हो वेल एंड गुड। अगर खुद से करने के बाद भी कंफ्यूजन हो रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कम एंड जॉइन मी ऑन प्लस। दैट्स वेयर आई गाइड यू फॉर दैट। ठीक है, करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। कृष्णा इलेक्शन वाला भी करेंगे अगर करने जैसा हुआ तो। देखो, मैं जबरदस्ती ऐसे टफ सेट कराता ही नहीं हूं, क्योंकि ना तो मुझे खुद को सॉल्व करने में मजा आता है, ना आपको मजा आएगा। तो जरूरी नहीं है हर एक सेट जो कैट में आया वो मैं कराऊं। जो छोड़ने के लायक है, इन सिंपल वर्ड, जो नालायक सेट है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसको जबरदस्ती हमें ये कुछ प्रूव नहीं करना है कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं ये सेट करा सकता हूं। मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता। मैं वही चीज कराता हूं जो आप एक्चुअल एग्जाम में करोगे, और आप उसको करके, या वो सेट जो नहीं मैं करा रहा हूं उसको छोड़ के भी आप 99+ परसेंटाइल ला सकते हो। राइट? So you don't miss any session, and that's proves your responsibility and love for the students. Yeah, that's another thing, guys. I don't like canceling my sessions. I don't like canceling my sessions. So I make sure कि when I go live, I do it at continuity, and फिर लास्ट में मैं मारता हूँ ट्रिप्स वगैरह मारता हूँ, पर आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 28, 29, 30 and 31 डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ना आपको मैं पढ़ने दूंगा, ना मैं पढ़ाने वाला। ठीक है, राइट। मैं पिक्स डालता रहूंगा ग्रुप में, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। So yeah, you also should have fun, guys. What I'm saying is work hard and enjoy harder. मैं पार्टी कहूंगा तो आप लोग सीरियसली ले लोगे, पार्टी करने बैठ जाओगे। ऐसा मत करना, आ जाओ सेशन में और मॉक्स लिखो। या एब्सोल्युटली मॉक्स लिखो। ठीक है दोस्तों, चलो, सो दैट्स इट। मिलते हैं 6 बजे। बाय बाय, ठीक है।